Good morning, class 9th and 10th. Today topic is structure of an atom. I think you have also discussed what is atom, structure of atom, Thomson model, Rutherford model. ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें हम लोग पहले ही से जानते हैं. In chapter 3 we have learned that atom and molecules are the fundamental buildings blocks of matter. The existence of different kinds of matter is due to different atoms constitute them. Now the questions arise: what makes of atom and elements different from the atom of another element? Second problem is, are atoms really divisible? क्या atom सही में divisible होता है as proposed by Daltons, or are there smaller constituents inside the atom? We shall find out the answer of these questions in this chapter. We will learn about subatomic particles and the various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atom. A major challenge before the scientists in the end of the 19th century was the reveal of the structure of the atom, as well as to explain the important properties. The education of to explain its important properties, the elucidations of structure of an atom is based on the series of experiments. One of the first indications that atom not divisible comes from the studying static electricity and the condition under which electricity is connected या conducted by different substances. इस चैप्टर में हम लोग कुछ चीज़ों पे मेन फोकस करेंगे. जो मेन चैलेंज है हम लोग का, साइंटिस्ट बिफोर द 19th century रिवेल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एज वेल एज टू एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है. ये सारी चीज़ें हम लोग को इस चैप्टर में आगे को समझने को मिलेंगी. चार्ज पार्टिकल इन मैटर. फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैटर, लेट अस कैरी आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. फर्स्ट एक्टिविटी इज कॉम्ब ड्राई हेयर. डज द कॉम्ब थिन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर. सभी लोग जानते हैं जब हम लोग जो कंघा होता है जिसको कॉम्ब बोलते हैं, उसको चार्ज करने के लिए क्या करना होता है, ऐसे सूखे बालों पे, ड्राई हेयर पे ऐसे रब करेंगे और छोटे छोटे पेपर के पीसेस के पास जब ले जाते हैं तो वो उनको अट्रैक्ट करता है. इससे हमें पता चलता है कि इस दुनिया में हर एक मैटर के पास एक प्रॉपर्टीज़ होती है जिसको चार्ज बोलते हैं. चार्ज, there are two types of charge in this universe, positive and negative. जब पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव के पास जाता है तो अट्रैक्ट करता है, या नेगेटिव पॉजिटिव के पास आता है तो अट्रैक्ट करता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. रब अ ग्लास rod with a silk cloth and bring the rod near the inflated balloons. Observe what happens. From these activities we can conclude that the rubbing of two objects together, they come electrically charged. Where does this charge come from? These questions can be answered by the knowing that an atom is divisible and consists of charged particle. Many scientists contributed in revealing the presence of charged particle in an atom. It was known by the 19th century 1900 that the atom was indivisible particles but contained at least one subatomic particle, the electron, identified by the Sir J.J. Thomson. Even before the electron was identified, E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiations in a gas discharge and called them the canal rays. These rays were positively charged radiations which ultimately led to the discovery of another subatomic particles. These subatomic particles had a charge equal to magnitude but opposite in the sign of that electrons. Its mass was approximately 2000 times of that of the electron. It was given the name of proton and journal and electron represented as E ऊपर नेगेटिव चार्ज का साइन एंड
a proton has a p positive sign charge. The mass of proton is taken 1 unit and its charge as +1. That means the mass of electron is considered to the negligible. That means पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, उसको नेग्लिजिबल बोलते हैं. एंड द चार्ज इज -1. इट सीम्ड दैट an atom was composed of the protons and electrons mutually balanced their charges. It also appeared that the protons were in the interior of the atom whereas the electron could easily to remove but not the protons. Now the big question was what sort of structure did these particles of some atom form? We will find the answer to these questions. What are the canal rays? पहले इस वाले जो पैराग्राफ है पेज नंबर 46 पे ये सारे दोनों क्वेश्चनों के आंसर लिखे हुए हैं, सभी लोग अच्छे से देख लेना. नेक्स्ट हम लोग का पैरा है द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. वी हैव लर्न डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. एक साइंटिस्ट थे डाल्टन सर, उन्होंने अपनी एटॉमिक से रिलेटेड एक थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं सर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. इन चैप्टर 3 वी हैव सजेस्टेड दैट द एटम वाज इंडिविजिबल. इंडिविजिबल दैट मीन्स जो डिवाइड ना हो, एंड इंडेस्ट्रक्टिबल मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता है. बट द डिस्कवरी ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड द एटम लेड टू द फेल्यूर ऑफ दिस aspects Dalton atomic theory. It was then considered necessary to note the electrons and protons are arranged within an atom. For explanations this, many scientists proposed various atomic models. J.J. Thomson was the first of the proposed the model of structure of an atom. थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम बोर्ड पे देख रहे हो सभी लोग, बना हुआ है जो स्फीयर है एक टाइप का, उसके अंदर छोटे छोटे चार्जेस लगे हुए हैं जो माइनस के हैं, और उसके स्फीयर पे जो लेयर है ये वाली सरफेस है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके अंदर ये जो दिख रहा है तुम्हें ये सब इलेक्ट्रॉन है. डेट मीन्स नेगेटिव चार्ज. सभी लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन पे हमारा कंसिस्ट करता है नेगेटिव चार्ज, और जो प्रोटॉन होता है इस पे होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. और जो न्यूट्रॉन होता है उसको इसीलिए न्यूट्रॉन बोला गया क्योंकि उस पे ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है. इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है. पॉइंट इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, अपोजिट होता है बट सेम होता है. 1.67 × 10⁻⁻19 कूलाम, इतना ही इस पे होता है. -1.67 × 10⁻⁻19 कूलाम. कूलाम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूनिट चार्ज की दी थी. इन्हीं के नाम पे चार्ज मतलब चार्ज की डिस्कवरी में कुछ इनका इम्पोर्टेंट रोल था, जिसकी वजह से इनकी जो चार्ज की यूनिट पड़ी, ऐसा यूनिट वो कूलाम पड़ी, ठीक है, कूलाम. और जो न्यूट्रॉन होता है इस पे ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है. इसका मतलब ये न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज होता है इसके ऊपर. सर J.J. थॉमसन जो इनका बर्थ डेट है 1856 और इनकी डेथ जो हुई थी 1940 में हुई थी. अ ब्रिटिश फिजिस्ट was born on Cheetham Hill, a suburb of Manchester, on 18 December 1856. He was awarded the Nobel Prize in Physics in 1906 for the work on the discovery of electron. He directed the Cavendish Laboratory at the Cambridge for 35 years, and 7 of these research assistants subsequently by the Nobel Prize. इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ये सर थॉमसन के बारे में थोड़ा बायोग्राफी था जो मैंने बता दिया. अब हम लोग पढ़ते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. मतलब थॉमसन जो थे वो एक एटम के बारे में, एटम का मतलब होता है परमाणु के बारे में किस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया था. थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम बी सिमिलर टू दैट द क्रिसमस पुडिंग. द इलेक्ट्रॉन्स in a sphere of a positive charge were like current dry fruits in a spherical Christmas pudding. We can also think the watermelon, the positive charge in the atom spread all over the like red
edible part of the watermelon, why the electron are the studied in the positively charged sphere like the seeds the watermelon. That means सर थॉमसन सर ने बताया था, थॉमसन सर ने बताया था कि जो एटम होता है वो एक तरबूज के तरीके दिखता है। वाटरमेलन का मतलब तरबूज होता है। जब हम लोग तरबूज को बीच से कट कर देते हैं, जैसे तरबूज सबने देखा होगा इस तरीके से होता है, ठीक है। इसको हम लोग जब बीच से कट कर देंगे, ये सपोज दैट तरबूज है, ठीक है। इसको जब बीच से हम लोग कट कर देंगे, ऐसे काट दिया इसको, तो ये जो पार्ट दिखेगा तुम्हें, ये इस तरीके से कुछ पार्ट निकल के आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर देखना छोटे छोटे इस तरीके से काले कलर के, ब्लैक कलर के इसके सीट बीज लगे होंगे। तो उन्होंने बताया ये जो बीज होते हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉन की तरीके होते हैं। मतलब इसी तरीके से किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन लगे हुए होते हैं इस तरीके से, जैसे बीज लगे हुए होते हैं वाटरमेलन में। और उसी मॉडल को बोला गया वाटरमेलन मॉडल या फिर थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद पढ़ना होगा सभी को रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, किस तरीके से जब बोर स्ट्रक्चर बोर सर जो थे उन्होंने मॉडल दिया एटम के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाउ द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटिंग डिफरेंट ऑर्बिट सेल। ये सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।